Hello, my dear students. Welcome in our today's class. In last lecture, we had completed the structures of all the alpha amino acids along with their value of alkyl group, then structure and three letter symbols. तो बेटा लास्ट लेक्चर में, लास्ट पीरियड में पूरे बेटा अल्फा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. आज बेटा हमको स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बेटा स्ट्रक्चर. Now this structure of protein is classified into 4 different levels. ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को बेटा 4 लेवल्स में क्लासिफाइड करें. वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंड वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड tertiary structure of protein, and last one quaternary structure of protein. सुनाई दिया क्या कहा मैंने? So in how many levels protein structure is classified? Yes, very good. It is classified into 4 different levels. One is the primary structure, second one is the secondary structure, third one is an tertiary structure, fourth one is an quaternary structure. And each level is more complex than previous one. हर लेवल बेटे अपने पहले लेवल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. मीन्स secondary structure more complex than primary, tertiary structure more complex than secondary, quaternary structure more complex than tertiary. Right? Now in our syllabus only primary structure of protein is included for this year. Right? Secondary, tertiary and quaternary structures are deleted only up to this year. सिर्फ बेटा ये साल के लिए सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सिलेबस में से निकाल दिए. सिर्फ बेटा अपने को पढ़ना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो वी विल लर्न अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. बेटा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर. Now those structure of protein in which many molecules of alpha amino acids are bonded together by peptide or amide linkage, that structure is called as a primary structure. ये तो बेटा अपन ने कई बार पढ़ लिए, चाहे तो अपन छोड़ भी सकते थे, मगर बेटा अपन ने छोड़े नहीं, फिर स्टडी कर रहे. We know that in protein many molecules of alpha amino acids are bonded together by amide linkage or peptide linkage. तो बेटा प्रोटीन में बेटा कई सारे अल्फा अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बेटा अटैच होते हैं पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज का यूज करके. तो बेटा उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम primary structure of protein. So the structure of protein in which many molecules of alpha amino acid are bonded together by peptide or amide linkage is called as primary structure. Now see here structure of protein. NH free valency, CHR single bond C double bond O, single bond NH, single bond CHR, single bond C double bond O, single bond NH,
CHR सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बेटा फ्री वैलेंसी. It is the one molecule of alpha amino acid. It is the second molecule of alpha amino acid, and it is the third molecule of alpha amino acid. So it is the structure in which many molecules of alpha amino acids are joined together by peptide linkage C double bond ONH. This linkage is called peptide linkage or amide linkage. So such structure is called primary structure of protein. And keep one thing in your mind. This primary structure of protein is written by using symbols of an alpha amino acids. Symbols बेटा याद है ना, जैसा बेटा ये एलानाइन है तो बेटा एलानाइन का ALA, राइट. ये बेटा अगर ग्लाइसिन है तो बेटा इसका GLY. अगर बेटा ये वायलिन है तो बेटा ये वायलिन का VAL. ऐसा. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिटन बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन सीक्वेंस. तो बेटे उसका नाम लिखा जाता है अल्फा अमाइनो एसिड के सिंबल्स का यूज करके, जो बेटा एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में अटैच होते हैं. एंड डैश इज रिटन बिटवीन देम. और बेटा उन सिंबल के बीच में, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां डैश, ये बेटा यहां डैश. सो डैश इज रिटन बिटवीन देम. तो बेटा उनके बीच में, सिंबल के बीच में लिखा जाता है डैश. नाउ हियर NH ग्रुप of alpha amino acid is present on left hand side, therefore it is called N terminal. तो बेटा इसको बोलते हैं बेटा N terminal, and it is called C terminal. It is the carbon of carbonyl group, therefore it is called C terminal, and it is the nitrogen of amino group, therefore it is called N terminal. So it is C terminal. तो बेटा इसे बोलेंगे हम C टर्मिनल. टर्मिनल मीन्स एंड, जैसा बोलते हैं ना बेटा अपन राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वैसा बेटे C टर्मिनल. और ये रहेगा बेटा N टर्मिनल. सो हियर अमाइनो ग्रुप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज N टर्मिनल. एंड C carbonyl group of alpha amino acid present on right hand side, therefore it is C terminal. So the N terminal of alpha amino acid are written at left hand side, and C terminal of alpha amino acid are written on right hand side. तो बेटे C और N टर्मिनल समझा. C टर्मिनल बोले तो कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. N terminal means nitrogen of amino group. So it is N terminal and it is C terminal. तो बेटे अमाइनो एसिड का N टर्मिनल किधर, लेफ्ट हैंड साइड में. और बेटे कार्बोनिल ग्रुप का C टर्मिनल किधर, राइट हैंड साइड में. सो द N टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड are written at the left hand side, and C terminal amino acid written on right hand side. So it is the primary structure of protein. ये है बेटा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर. राइट. नाउ लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस प्रोटीन, that is a denaturation of protein. Right heading, denaturation of protein. हाँ, तो बेटा लास्ट टॉपिक प्रोटीन से, that is the denaturation of protein. denaturation, denaturation of protein. It is very easy, बहुत इजी टॉपिक है बेटा.
आपने बेटा डेली लाइफ में इसको रोज देखा हुआ है, राइट। वी नो दैट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। मिल्क बेटा कन्वर्ट होता है क्या में बेटा? कर्ड में। आप बेटा मिल्क में थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो, या बेटा सॉल्ट ऐड कर दो, या बेटा कोई ऐसी चीज डाल दो तो बेटा दूध फट जाता, राइट, और बेटा उसका कन्वर्शन हो जाता क्या में? कर्ड में। मगर बेटा वापस कर्ड मिल्क में कन्वर्ट होता क्या? नहीं। कर्ड मीन्स दही जिसको बोलते बेटा हम, राइट। इट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब बेटे एग को बॉईल करो, एग अंडा जो होता है उसको बॉईल करो, तो बेटा बॉईल करने की वजह से क्या होता है बेटा? अंदर का जो व्हाइट कलर का लिक्विड रहता, दैट व्हाइट कलर्ड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर्ड सॉलिड रबर लाइक मास। तो बेटा वो जो लिक्विड रहता अंडे में का, बेटा वो बॉईल होने के बाद व्हाइट कलर का सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता। अब बेटे एग को ठंडा करने के बाद क्या बेटे वो वापस लिक्विड बनता क्या? नहीं बनता, राइट। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मीन्स वंस इट इज हैपन, इट डू नॉट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एक बार बेटे ये कन्वर्ट हो गया तो बेटे वापस नहीं होता। जैसा बेटे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया, वापस बेटा कर्ड मिल्क में कन्वर्ट नहीं होता, राइट। अंडे को बॉईल करो बेटा, लिक्विड जो पोर्शन रहता बेटे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता, तो बेटा वो सॉलिड वापस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग, राइट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का जमना। एक बार बेटे ब्लड सॉलिड बन गया तो बेटा वो ब्लड वापस लिक्विड नहीं बनता। सो ऑल दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? नाउ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, द लॉस इन biological activity of protein due to heating or due to addition of acid, bases or salt is called as denaturation of protein. तो बेटे जब प्रोटीन को गर्म करते, हीट करते, राइट, या बेटे उसमें एसिड, बेस या बेटे सॉल्ट ऐड करते, तो बेटा प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देता, और बेटे उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नाउ ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मॉलिक्यूलर शेप इज चेंजेस विदाउट ब्रेकिंग पेप्टाइड और अमाइड लिंकेज। बेटे डीनेचुरेशन की वजह से प्रोटीन का मॉलिक्यूलर शेप चेंज हो जाता, मगर उसमें का अमाइड लिंकेज और बेटा पेप्टाइड लिंकेज ब्रेक नहीं होती, राइट। नाउ ड्यू टू डीनेचुरेशन, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर डिस्टर्ब, चेंजेस, बट इट रिटेन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेटे डीनेचुरेशन की वजह से बेटे प्रोटीन के सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस होते, मगर बेटा उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होते। मतलब बेटा उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि वैसा रहता। अभी पढ़े अपन ने प्राइमरी स्ट्रक्चर, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अमाइड और पेप्टाइड लिंकेज, that structure is called primary structure. So during the denaturation of protein, secondary, tertiary and quaternary structure of protein is disturbed, but it retain its primary structure. तो बेटा इस प्रोसेस में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि वैसा रहता, सिर्फ बेटा चेंजेस होते उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में
टर्शियरी स्ट्रक्चर में और बेटा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग, बेटा एग को बॉईल करो, क्या होता है बेटा, इट कोगुलेट्स एग वाइट, उसकी वजह से बेटा उसका लिक्विड पोर्शन सॉलिड कोगुलेट होता, कोगुलेट होना मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना, तो बेटा उसका लिक्विड पोर्शन बेटे कोगुलेट होता, व्हाइट पोर्शन में सॉलिड पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता। देन कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड, बेटे दूध का कन्वर्शन दही में, मिल्क का कन्वर्शन बेटा कर्ड में। देन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बेटा ब्लड क्लॉटिंग, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये सब के सब बेटा एग्जांपल है किसके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। सो हियर टॉपिक प्रोटीन इज ओवर, बेटा हमारा प्रोटीन टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट हुआ और बेटा प्रोटीन हुआ। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स ये नाम सुने ना बेटा, बायोलॉजी में आपने कई बार सुने होंगे एंजाइम्स, ENZYMES। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? ऑल द एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जितने भी बेटा एंजाइम्स है बेटा वो सब के सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। मेनी बायोलॉजिकल reactions are takes place in our body. Respiration, digestion, circulation, secretion, ये सब बेटे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बेटा हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। और बेटा आपने सुने होंगे राइट, पेप्सिन, बेटा ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन बेटे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, राइट। वैसे बेटे म्यूसिन हमारे सलाइवा में, थायरॉक्सिन जो बेटे हमारे थायराइड ग्लैंड्स में सिक्रेट होते हैं, है ना बेटा। ये सब आपने सुने ना, ये सब बेटे एंजाइम्स है। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which plays an important role in many biological process. We know that at 37 degrees Celsius and at 7.4 pH, many biological process are takes place inside our body. बेटे हमारे बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पे और बेटा पीएच कितना 7.4, कई सारे बेटा प्रोसेस होते, जैसा बेटे रेस्पिरेशन होता, सिक्रीशन होता, डाइजेशन होता, हार्ट की पंपिंग है, ये सब बेटे हमारे बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेस है। और ये सब बेटा प्रोसेस होते किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which plays an important role in many biological process takes place inside our body. Now all the enzymes are proteins. जितने भी बेटा enzymes है वो सब के सब बेटा प्रोटीन है। And keep one thing in your mind, a living cell contains at least 1000 different enzymes. बेटा एक लिविंग सेल में कम से कम बेटे 1000 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। एवरी लिविंग सेल कंटेन एट लीस्ट 1000 डिफरेंट एंजाइम्स। नाउ ऑल द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। हर एंजाइम बेटा स्पेसिफिक होता है, अपना बेटे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट देयर ओन प्लेस। बेटा वो रोल अपना रोल अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा बेटे इंसुलिन, उसका काम है बेटा शुगर को कंट्रोल करना, बेटा वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगा। थायरॉक्सिन, उसका काम है बेटा रेस्पिरेशन में हेल्प करना, तो बेटा वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। पेप्सिन, उसका काम है बेटा डाइजेशन में हेल्प करना, तो बेटे वो सर्कुलेशन में हेल्प नहीं करेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा? हर एंजाइम बेटा अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरे का काम नहीं करता बेटे, वो सिर्फ अपना काम अपनी जगह। सो एवरी एंजाइम
plays an important role at their own position. Therefore, all the enzymes are highly specific in nature for a particular substrate in chemical reaction. मतलब बेटा हर एंजाइम अपनी अपनी जगह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, याद आ रहा बेटा, इंसुलिन इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. बेटे आपको मालूम होगा हमारे पैनक्रियाज में अल्फा बीटा गामा सेल्स है, उसमें के बीटा सेल्स पैनक्रियाज के बेटा बीटा सेल्स सिक्रीट करते बेटा इंसुलिन, राइट, एंड दैट इंसुलिन कंट्रोल दी ब्लड शुगर. और बेटा वो इंसुलिन बेटा हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. सिमिलरली वैसा ही बेटे अगर आप देखेंगे हेमोग्लोबिन, इट हेल्प इन सर्कुलेशन. हेमोग्लोबिन बेटा जो है वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है. वैसे बेटा हमारे बॉडी के अंदर है अमाइलेज. अमाइलेज इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्लाइवा. हमारा जो स्लाइवा है बेटा, हमारा जो थूक है उसमें होता है बेटे अमाइलेज, विच कॉजेस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. बेटा वो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है. सिमिलरली माल्टेज इज द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज द माल्टोज टू ग्लूकोज. बेटे हमारे बॉडी में माल्टोज का कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में, और बेटे उस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है बेटा माल्टेज एंजाइम. थायरॉक्सिन, राइट, सिक्रेटेड बाय आवर थायराइड ग्लैंड्स. बेटे थायरॉक्सिन नाम का बेटा एंजाइम है जिसे हमारे थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते, एंड दैट थायरॉक्सिन हेल्प इन रेस्पिरेशन. थायरॉक्सिन बेटा हेल्प करता बेटा किसमें, रेस्पिरेशन में. सो इट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंजाइम्स. तो ये है बेटा एंजाइम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो we will continue.